Gratitude greetings. I am super happy, super blessed because I'm in front of my great coach. She is the founder of the Blissful You program. She's achieved so much in her life effortlessly. She's a manifestation coach, law of attraction coach, and she's a master coach who helps so many coaches win the game of life, of abundance, of clients, of self confidence, of self esteem, of money beliefs, and so much more because all is related to your mindset. Welcome, Sinara Navre, ma'am. थैंक यू सो मच। कितना अच्छा लगता है अपनी तारीफ सुनो किसी और से। बहुत सुंदर लगता है। क्योंकि आपने सो मच। इतनी तारीफ लायक काम किए हैं और आपने इतनों की जिंदगी में दिया जलाया है। जो भटका हुआ था उसको रास्ता दिखाया है, जो कमजोर था उसको ताकत दी है। सो हाउ डिड ऑल स्टार्ट? प्लीज टेल अस द सीक्रेट। ओके, मुझे लगता है लाइफ कोच जो होते हैं एंड दोज हु इम्पैक्ट अदर पीपल, it's not that one particular day or the day where they when they get some award recognition or certificate. From that day they become life coach and they start impacting. You already have that innate inside you. And if you look back, any life coach who is impacting or anybody who is impacting others' life, he is doing it without any certification, endlessly, right from the beginning, like bachpan se. So करेक्ट। then only you ठीक can है, become life लेकिन coach. आपने ये नहीं सोचा था ना कि मैं कोचेस को ट्रेन करूंगी, कोचेस की प्रॉब्लम सॉल्व करूंगी। तो स्कूल में भी नहीं सोचा था कि मुझे ये करना है। तो ये कैसे हो गया? I would say जैसे जैसे रास्ता अंदर से आया, I just followed it. बहुत सारे जो major decisions in my life I have taken, and they are very beautiful. They turned out to be very magical and beautiful. So when I look back and I see ki what was the reason behind those decisions. So either the decision is like, I don't want to be here. I cannot stay here. Now I have to do something. That is one reason. Or I badly want something where I want to go. I cannot compromise with this. I have to go there. So one of this is definitely working. यूनिवर्स को बोला ये नहीं चाहिए और ये चाहिए, वो ये हो गया। चाहिए। क्लैरिटी, व्हाट आई वांट, व्हाट आई डोंट वांट, क्लियर होना चाहिए, है ना? कभी कभी हम कॉम्प्रोमाइज कर रहे होते हैं, कभी हाँ कभी ना कर रहे होते हैं, फिर यूनिवर्स को खुद नहीं पता चलता है भाई तू चाहता क्या है। हाँ, मैं तुझे क्या करेक्ट। दूं? तेरा ऑर्डर तो बार बार 5-5 मिनट के बाद बदल रहा है। ओके, व्हाट इज द मेजर सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस? यू नो, अबंडेंस, फाइनेंशियल सक्सेस, और ये जो इतनी बड़ी स्माइल है, और एक जो ये हल्कापन है, या नो फ्रिक्शन मोड में आ गए हो आप। हैप्पीनेस, यू नो, अंदर वाली, दिल से। ठीक है, जूम चला नहीं चला, ठीक है, सेशन हुआ नहीं हुआ, ठीक है, आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है, टाइम से नहीं आया। कई लोग पागल हो जाते हैं, दिमाग खराब हो जाता है, बीपी हाई हो जाता है ना, मीटिंग कैंसिल कर देते हैं। तो ये कैसे? व्हाट इज द सीक्रेट? Oh, that's a beautiful question, Sunny. I would say that happiness is one of the secrets, and second is faith. I don't know why, but in my college days also I have experienced this. There is something, some power which is always surrounding me, and it is that power definitely wants me to be happy. I believe so. And I have seen those incidences. Maybe it is vice versa. I have seen the incidences. I remember that many times I felt like I don't I don't deserve to be here, but I'm here. Something at somewhere at a great place. Who is that? Who is that? Who is that? Now I understood. So that faith in some divine power, faith in some superpower, where I know that I'm highly, highly blessed. And that power is always, always granting me what I believe in. है ना? यानी जीनी कोई और नहीं है, ये फेथ ही है। यस, लाइफ इज ब्यूटीफुल। जब दिल ही टूट गया तब जी के क्या करेंगे, ऐसा होगा तो फिर उल्टे पुल्टे ख्याल ही आएंगे। करेक्ट, यू मेड इट अभी हम सिंपल लोग एंड रो ईजी। भी रहे हैं ना, अभी हम लोग रो भी रहे हैं ना किसी चीज पे, मुझे नहीं मिला,
मैं रो रही हूँ, आई एम नॉट हैप्पी, ये क्या किया यूनिवर्स तुमने, या फिर वॉट एवर द डिवाइन पावर, भगवान, गॉड, खुदा, वॉट एवर यू से, अगर ऐसा भी है ना, फेथ इज समथिंग दैट टेल्स मी, सीमा ये तो इंजेक्शन है, ऑपरेशन के बाद तो तबीयत और भी ठीक होने वाली है ना। बच्चे को स्कूल भेजते हैं, माता पिता, बच्चा रोता है, टेक योर टाइम, नो प्रॉब्लम, वी हैव हाँ, ऑल द बढ़िया टाइम इन द बढ़िया। वर्ल्ड। सो बच्चे को जब माता पिता अपने स्कूल में भेजते हैं तो बच्चा रोता है, बट आगे जाके बच्चे को पता चलता है वो जाना बहुत जरूरी था। जो आज का जो दिन में देख रहा हूँ, वो पहला दिन बहुत जरूरी था। सो even if I'm crying, I feel that there is some divine purpose why I'm crying now. So there is nothing to ना, worry. सुन रहा है ना तू, रो रही हूँ मैं, तो भी कुछ नहीं होता। आज रो ले, कल कुछ अच्छा होने वाला है। ये रोने का भी कोई अच्छा रीजन है? कुछ नहीं होता। सैड सॉन्ग की कहानी, कुछ नहीं होता। And you आप have भी आसान evidences for, बना। you have evidences for this. पीछे जाके देखो, हर किसी की लाइफ में कितनी बार रोए हो, कितनी बार डरे हो, और उसके बाद बावजूद भी हंसे हो ना। उसके बाद ऐसे मोमेंट्स आए जहाँ पे यू आर एट द हाईएस्ट लेवल ऑफ हैप्पीनेस, तो वो रोने का क्या था? ठीक है, रोने के पीछे भी हंसी छुपी है, कोई ब्लेसिंग छुपी है, कोई गिफ्ट है। ग्रेट। सो अभी यू आर क्लोज टू योर डैड एंड यू आर नॉट बॉर्न रिच, सिल्वर स्पून। सो ये ट्रांजिशन कितना स्मूथ था? और आपके बचपन में बिलीव्स कैसे होते थे कि क्या मैं रानी बनूंगी, क्या मैं, मेरा बैंक बैलेंस 6 फिगर, 7 फिगर, 8 फिगर, 9 फिगर जाएगा? आई वुड से एक ये बहुत अच्छा इंसिडेंस है, एंड पीपल कैन रेजोनेट विद दिस इंसिडेंस की उनके भी लाइफ में, हर किसी के लाइफ में होते हैं। सो इट इज नॉट व्हाट वेयर यू आर बॉर्न और हु आर योर पेरेंट्स, आपको क्या मिला नहीं है पैदाइशी, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। व्हाट यू क्रेव फॉर, यू आर ऑलवेज गेटिंग दैट। तो जब मैं फोर्थ स्टैंडर्ड में थी, आई मुझे शॉपिंग, मैं ना पूना के ऐसे सिटी, ऐसी जगह पे रहती थी जहाँ पे मार्केट प्लेस है, तो लड़कियों के कपड़े, ज्वेलरी, रोज स्कूल से जाते वक्त आते वक्त, ये क्या पता नहीं टॉर्चर था या क्या था, देखो देखो, और मुझे इतना पैशन है, इतना क्रेज है ड्रेसिंग, ज्वेलरी और ये सब। और मैं देखती थी। और हमारे यहाँ पे गांव से लोग रिलेटिव्स आते थे, घर पे रहते थे, वहां पे शॉपिंग करके बैग्स वगैरह लेके, वो होता है ना बैग में ये लाया, और हमें दिखा के चले जाते। एंड आई बिलोंग टू अ वेरी अंडर प्रिविलेज बैकग्राउंड, पैसा नहीं है, जगह नहीं है, कुछ भी नहीं। तो कंडीशनिंग ऐसा था कि हम लोग सिर्फ जिंदगी भर ब्रेड एंड बटर के लिए ही स्ट्रगल करते रहेंगे, ये चीजें हमारे लिए बनी नहीं है। तो इनको सिर्फ देखो, और मतलब मांगने का भी हक नहीं है हमें। आई माई कंडीशनिंग वॉज दैट, मेरी पूरी फैमिली का। फिर भी बच्चे तो सुनते नहीं है ना, नहीं नहीं क्यों नहीं, मुझे चाहिए मुझे चाहिए। तो मम्मा को बहुत बहुत जिद की कि मुझे ना शॉपिंग पे जाना है, मुझे शॉपिंग पे जाना, कैसे जाना है, और मेरे दिमाग में क्या था, जब मैं वापस आऊंगी शॉपिंग से मेरे सारे बैग्स भरे होंगे, वगैरह वगैरह। चौथी में थी, फोर्थ स्टैंडर्ड, गई मार्केट प्लेस में 4 घंटे, मम्मा ने बहुत महीने का मेरा जिद था। फिर बाद में उसने सोचा जाने दो, उसको लेके जाओ। हम दोनों घूमे 4 घंटे, इतना सुंदर लगा, इतना सुंदर लगा। और फिर अभी खरीदने के बाद जब आई, मम्मा ने बोला नहीं, सिर्फ बच्चा ये देखने का होता है, हमारे लिए ये नहीं है, खरीदना नहीं है, सिर्फ देख के जाने का है। दैट वाज द डे व्हेन आई अंडरस्टूड कि मुझे वो रिबेलिज्म आया अंदर की, ऐसे कैसे वो लोग मेरे रिलेटिव्स खरीद सकते हैं और मैं नहीं खरीद सकती, मुझे वो हक क्यों नहीं है? शी सेड बिकॉज हम लोग गरीब है। तो क्या हुआ, मुझे वो समझ में नहीं आया, गरीब हुआ तो क्या हुआ? एवरी ह्यूमन, और वहां पे स्कूल में भी वो सिखाते ह्यूमन राइट्स, एवरी ह्यूमन इज इक्वल, वो सब चलता रहता है थोड़ा सा बिगिनिंग, ये क्या है ये क्या है। एंड दैट वाज द डे आई रिमेम्बर, मुझे ना पैसे के लिए या फिर अच्छी लाइफस्टाइल, पैसा नहीं बोल सकते, अच्छी लाइफस्टाइल, बेटर लिविंग, मुझे लगा ये मुझसे कोई छीन नहीं सकता, अब ये चाहिए मतलब चाहिए। और एक दिन ऐसे आएगा, प्राइस टैग नहीं देखूंगी, आई जस्ट शॉप, मुझे ये अच्छा लगा। एंड लिटरली when it happened, I did not even realize कि यहाँ तक आ गए हम लोग। I don't see price tag, I just buy. So this Everything starts with a exists. belief and telling the universe. I So told you ना, beautiful. something that I don't want,
ये नहीं जिंदगी जीनी। इट टुक 25 years, 25 नहीं, फोर्थ में थी, फोर्थ में कितना एज होता है, 9 years, सो आठ इट टुक साल होता 15 years। हाँ, है। 15 years it took, but it happened. वेरी गुड, आई एम सो हैप्पी। यूनिवर्स सबकी सुनता है, आपको क्या चाहिए वो क्लियर होना चाहिए। और आजकल तो हम बोल रहे हैं भाई ये खून पसीना वसीना बहाना छोड़ो, एफर्टलेसली भी आता है। तुम ये विश्वास करते हो कि भैया बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, तो भगवान कहते हैं ठीक है बेल ले भाई। अगर हाँ, आप बोलते हो एफर्टलेसली आता है, तो एफर्टलेसली आता है ना। and you call these people as lucky people. हाँ। ये विश्वास है, क्योंकि तुम स्वयं भगवान का रूप हो, स्वयं यूनिवर्स का Absolutely. अंश हो। हाँ। एंड आप एक और फेमस बोलते हो, यू आर जस्ट अ डैश अवे। You're just a dash away, vibration away, yes. हाँ, लोगों फिल को इन द कुछ और ब्लैंक्स, लगेगा। वेरी गुड। नहीं, वो अच्छा लगा कि फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन हो गया। आपने मम्मी से दो बातें क्या सीखी जो आपके दिल के बहुत करीब है? यू जस्ट लव मम्मा फॉर दिस, दो बातें। हम्म, मैंने सीखी नहीं, मैं बोल सकती हूँ, आई रियली लाइक अबाउट हर, शी इज वेरी वेरी सिस्टमैटिक एंड यस, हार्डवर्क तो मुझे दोनों से मिला है। माय मदर एंड फादर बोथ वेयर लाइक पीक ऑफ हार्डवर्क, कोई लिमिट ही नहीं है हार्डवर्क का। और दूसरा है, मम्मा से एक हार्डवर्क बोल सकती हूँ, और दूसरा है कि शी वॉज कॉन्स्टेंटली थ्राइविंग फॉर बेटरमेंट। मेरी मम्मा बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं थी, शी कुड नॉट इवन राइट हर नेम, बट मुझे याद है कि सारी अच्छाई, अच्छी क्वालिटीज उसको खुद में लानी थी। मैं किसी को ये ना करूं, मैं किसी के साथ ये ना करूं, अच्छा 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 बनूं। और पापा? पापा, ही इज वेरी इनोसेंट एंड ही इज वेरी, वो मुझे उनका बहुत अच्छा लगता है, वो होता है ना हैप्पी गो लकी एंड लाइक, कुछ एक्सपोजर नहीं है, पैसा नहीं है, बट वो बहुत इनोसेंस अभी भी था उनके, मतलब ही वॉज 82, बट ही वॉज लाइक 7 year 8 year old बॉय। इतना इनोसेंस था, इतना इनोसेंस था, एंड आई थिंक वो मुझ में है, एंड दैट इज द रीजन ज्यादा टेंशन नहीं आती। व्हेन यू आर इनोसेंट यू ट्रस्ट इजीली, राइट। वेरी नाइस। एंड नाउ योर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स, थ्री हैप्पीएस्ट मोमेंट्स इफ यू कैन शेयर विद अस। ओ देयर आर सो मेनी। तो सो मेनी सबसे कर लो पहला, आप। तीन मैं बताऊंगी, आई नो दैट देयर विल बी अ टाइम लिमिट। सबसे पहला जो मुझे याद है ना, मैं 7th स्टैंडर्ड में थी एंड आई लव पब्लिक स्पीकिंग। तो हाँ। एंड आई, मेरे पापा को ये स्कूल, उनका उनको कुछ एक्सपेक्टेशन ही नहीं था कि बच्ची का कुछ होगा और उसके लिए तारीफ करने के लिए हमें बुलाया कुछ दिमाग में नहीं था। मुश्किल से स्कूल में बाकी के लोगों ने डाला है इसलिए डाला होगा शायद, ऐसा कुछ था। तो आ, मेरा ड्रामा था, प्ले होता है ना स्कूल में, और मेरे प्ले का आई वॉज द लीड रोल। 24 स्कूल्स, पूना का एक वेरी फेमस थिएटर, बाल गंधर्व रंग मंदिर, वेरी फेमस थिएटर। बड़े बड़े जो सेलिब्रिटी एक्टर्स होते हैं उनके परफॉर्मेंसेस वहां पे होते हैं। सो वहां पे कंपटीशन था, पूना के 24 स्कूल्स, और मेरा स्कूल ऐसा इतना ये नहीं था, अवार्ड्स वगैरह कुछ नहीं मिला था। तो फर्स्ट टाइम माय स्कूल गॉट फर्स्ट अवार्ड पूरे पूना में। एंड मेरा लड़कियों का स्कूल था, सिर्फ गर्ल्स, तो पेरेंट्स में से भी सिर्फ लेडीज को अलाउ किया था देखने के लिए। आई डोंट नो व्हाई, मे बी लिमिटेशन ऑफ नंबर और समथिंग, ओनली माय फादर वाज अलाउड। एंड देन माय मदर टोल्ड मी द इंसिडेंट्स। हम लोग ऑडियंस में बैठे थे, पीपल डिड नॉट नो दैट वी आर योर पेरेंट्स, एंड वी वर लाइक लिसनिंग टू देम। वो बोल रहे थे क्या क्या इसके मम्मी पापा को कैसे लगता होगा, एंड दे डिड नॉट टेल एनीबॉडी कि ये हमारी बच्ची है। सो दैट वाज द पीक ऑफ द हैप्पीनेस। स्कूल के बहुत सारे मेमोरीज है। दूसरा जो है, 10th स्टैंडर्ड में मुझे प्रीलियम में, फाइनल एग्जाम के पहले ना, मुझे 50% मिले थे, एंड आई वॉज ऑलवेज द सेकेंड, क्या बोलते हैं उसको, सेकेंड रैंकर इन द स्कूल, बचपन से। हाँ। पहला तो कभी नहीं आया। और सडनली 10th स्टैंडर्ड में कुछ हुआ था, तो
थोड़ा मेरा डिस्टर्ब हो गया लाइफ। तो 10th स्टैंडर्ड में प्रीली में मुझे 52 मिले थे, एंड फाइनल एग्जाम में आई गॉट 82। वाह। डेफिनेटली विथ हार्ड वर्क, तो मतलब किया था, बट वो जादू जैसे ही लगा। दैट इज सेकेंड। थर्ड में मुझे मास्टर्स में पूना का मास्टर्स में ना एंट्रेंस एग्जाम था। अगर आपको पूना यूनिवर्सिटी में मास्टर्स करना है तो आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। एंट्रेंस एग्जाम में इंडिया के ऑल ओवर दे सिलेक्ट ओनली 100। देयर आर 5 ब्रांचेस, 20 20 20। और तब मैंने सुना था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बहुत स्कोप है, तो तुम्हें ऑर्गेनिक लेना है, क्योंकि मुझे जॉब चाहिए था। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मेरा नंबर आ गया। और पता है लिस्ट में मेरे पहला का जो नाम था दैट वाज नंबर 10। कितना था? 20 नंबर 20। अगर वो नाम प्रेजेंट रहता तो मेरा एडमिशन नहीं होता। आई वाज 21, देयर आर 26। मैं गई वहां तक, अभी मुझे पता है नहीं होने वाला। एंड देन दैट गर्ल वाज एब्सेंट। मे बी शी गॉट एडमिशन समवेयर एल्स, एंड आई लैंडेड अप इनटू MSc ऑर्गेनिक केमिस्ट्री द लास्ट सीट इन ओपन कैटेगरी। एंड वहां से तो दुनिया बहुत ही सुंदर। सो दैट वाज अ टाइम व्हेन आई फेल्ट कि अरे कोई है। एंड लिटरली आई डाउटेड। मुझे स्कॉलरशिप मिल रही थी, एक सर दे रहे थे, तो मुझे लगा शायद इन सर का यहाँ पे कोई कनेक्शन होगा। आई लिटरली फेल्ट कि ऐसे कैसे हो सकता है। बट देयर इज ऑलवेज अ डिवाइन पावर, नो, इफ यू बिलीव इट हेल्प्स। बिल्कुल सही बात है। एक बोनस और देता हूँ मैं आपको, एक और इंसिडेंट बता दो आप जो दिल के करीब है। हैप्पी मोमेंट्स, अभी उसमें से अगर एक सिलेक्ट करना है तो ये जो है ना, ये जब हुआ व्हेन आई गॉट मैरिड टू माय हस्बैंड, वो सारा मेरी फैमिली पूरा अगेंस्ट थी। दैट टाइम आई वाज क्राइंग, बट अ वीक लेटर और 15 डेज और अ मंथ लेटर वो पता चला कि अगेन सम मिरेकल हैपेंड। लाइक वो होता है ना, हम कमल का फूल तोड़ते हैं, उसको उठाते हैं, एकदम प्यार से उसको दूसरी अच्छी जगह पे रखते हैं, विच इज मच बेटर देन। आई लिटरली फेल्ट दैट। तो वेरी नाइस। और वो तोड़ते समय कमल के फूल को लगता है मुझे तो तोड़ा है मेरे प्लांट से, मेरे सोर्स से तोड़ा है। एंड मेरी उसको थोड़ा टाइम जाता है, एंड देन दैट कमल का फूल जाता है भगवान के पैरों में। सो तब उसको पता चलता है देयर इज सम डिवाइन फोर्स। तो वो एक यस बहुत ही हैप्पी मोमेंट। आई डिड नॉट नो कि ये इतना अच्छा होने वाला यस। और आप मूवी वगैरह देखते हो या ऐसे एकदम सीरियस लाइफ कोच सक्सेस है। ऐसी ऐसी बातें करते हो? आई लव लॉट ऑफ फन। मैं बहुत बचपना करती हूँ मूवी। आई डू सी मूवी। मुझे वो मेरे हस्बैंड से कौन आदत सी लगी है। फेवरेट? सो एक दिन ऐसे था, हमने एक मूवी का टिकट निकाला, थिएटर में बैठे, कोई नहीं था, बोरिंग मूवी थी, बोरिंग थी, मजा नहीं आया, हमने उसको आधी छोड़ी, दूसरा टिकट निकाला और दूसरे मूवी में जाके बैठे। वेरी नाइस। वी यानी वॉच मूवी सारी वंस इन अ खुशियां भी वीक। लेते हो आप, नॉर्मल जिंदगी जीते हो हमारी जैसे। पहले इतना नहीं करती थी। पहले क्या था, खुशियां लेते समय वो साइड बैक ऑफ द माइंड में गिल्ट था। नहीं, तुम्हें सिर्फ स्ट्रगल ही करना है, क्योंकि अपब्रिंगिंग बहुत स्ट्रगल से था। प्रूव करना है, अच्छा बनना है, अच्छा बनना है। अच्छा बनना है मतलब खुश नहीं रहना है, एक ऐसा डेफिनेशन बहुत लोगों का होता है जो बहुत स्ट्रगल से आते हैं ना। अभी नहीं, अभी हैप्पीनेस इज फर्स्ट प्रायोरिटी, गोल्स वगैरह सब बाद में। इफ यू आर हैप्पी यू विल गेट एवरीथिंग, इट विल फॉल इन योर लैप। वी डिस्कस्ड अबाउट इट। जैसे आप बोलते हो खुशी से डिस्कवरी कॉल करो। हाँ। वेरी गुड, अमेजिंग। तो गाना कौन सा फेवरेट है? गाना, गाना जो जीजा जी के लिए गाया होगा राउंड नहीं राउंड घूम नहीं के। नहीं 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 नहीं, वैसा नहीं है। गाना ना, वो बावरा मन देखने चला है एक सपना, मुझे रोना आता है और मुझे गा लगता है दो ना, दो बावरा मन। लाइनें गा दो। अरे रे रे दो रे, लाइनें सनी प्लीज प्लीज ये मत करो मेरे साथ, खुद भी इतना अन्याय मत करो। मुझे गाना आधी लाइन तो बनती है। खुद पे और लोगों पे इतना बड़ा अन्याय मत करो। हम खुशी की बातें कर रहे हैं। चलो ठीक इट है, विल बी ये टॉर्चर फॉर एवरीबॉडी। ऑफ रिकॉर्ड गा लेंगे। हाँ। So great. Now let's talk about one word answers. Life in one word. ब्यूटीफुल। Coaching in one word.
Love. Mummy in one word. Respect. Papa in one word. Innocence. Beti in one word. Princess. Hi. Seema in one word. Go lucky. Crazy. Yes, you are, and you inspire so many people. I just love your content. You give away so much freely in your discovery calls, in your daily content, and it is so inspiring. I wanted this journey to continue forever, and universe has blessed me. इसका जो रोज का कंटेंट है सनी, उसको कंज्यूम कर और मस्त रहे, अपनी वाइब्रेशंस पे ध्यान दे और एंजॉय कर. Thank you so much for what you do, for who you are, and the way you do it. Thank you so much. Thank you so much for inviting me here. I really loved all your questions. I enjoyed. I how I felt. I felt like I'm sitting on that hot seat in front of Amitabh Bachchan in Kaun Banega Crorepati, or I'm feeling that I'm sitting in Kapil Sharma show. And one day that will also happen. Yes, that is going to happen very fast as the best life coach of the world. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you for Yes. inviting me.